Dear student, today I am going to discuss the topic Banker's algorithm. It is one of the part of the deadlock avoidance. In this, the resource allocation graph algorithm is not applicable to a resource allocation system with multiple instances of each resource type. The name was chosen because the algorithm could be used in a banking system to ensure that the bank never allocated its available cash in such a way that it could no longer satisfy the needs of all its customers. When a new process enters the system, it must declare the maximum number of instances of each resource type that it may need, and this number may not exceed the total number of resources in the system. Several data structures must be maintained to implement the banker's algorithm. These data structures encode the state of the resource allocation system. Let n be the number of processes in the system and m be the number of resource type. Here the available, that is, we need the following data structure. Here the available, it basically tells a vector length m which indicates the number of available resources of each type if available j is equal to k. That is, this one is available j is equal to k. Here k is basically the instances of resource type rj, that is a resource rj available. Next data structure is max. Max is basically n cross m matrix. Again, n is the number of processes and m is the number of resource type. In this n cross m matrix basically defines the maximum demand of each process if max I j equal to k, then process pi may request at most k instances of resource type rj. The next data structure is allocation. An n cross m matrix defines the number of resources of each type currently allocated to each process. If allocation ij is equal to k, then process pi is currently allocated k instances of resource type rj. And a need n cross m matrix indicates the remaining resource of need of each process. If need ij is equal to k, then process pi may need k more instances of resource type rj to complete its task. And the formula for calculating the need ij is basically the maximum minus allocation. In the simple verse, before the process when starts executing, उसको पहले से ही बताना पड़ेगा कि उसको maximum कितने resource के instances चाहिए, at present उसको कितने allocated हैं. With the help of an allocation कहाँ से होगा? Available instances से ही होगा. जितने अवेलेबल हैं उनमें से ही एलोकेट करवा सकते हैं, और एलोकेशन मैक्सिमम में से अगर एलोकेशन माइनस कर देंगे तो ऑन दैट बिहाफ हमें उससे उसकी नीड कैलकुलेट कर लेंगे. तो दीज आर द बेसिकली द डेटा स्ट्रक्चर्स जो बैंकर एल्गोरिथम में रिक्वायर्ड हो सकता है टू सेव द वैल्यूज. This is basically the banker's algorithm for identifying the safe sequence. तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेफ्टी एल्गोरिथम बोलते हैं. यहाँ पे हम एक एक स्टेप पढ़ते हैं. Let work and finish be the vectors of length m and n respectively. वर्क और फिनिश क्या है? यहाँ पे वेक्टर्स हैं जिनकी लेंथ क्या है? m और n, और हमने उनको बेसिकली वर्क को तो किस डेटा स्ट्रक्चर से इनिशियलाइज करवा रखा है? अवेलेबल से. और एक फिनिश एरे है, जो फिनिश एरे की इंडेक्स वैल्यू क्या है? i है, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, और उतनी ही उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी एरे के अंदर, और उसकी हर एक वैल्यू को हम क्या कर देंगे? फॉल्स कर देंगे. ठीक है. सेकेंड स्टेप क्या है? हमें ये चेक करना पड़ेगा जिस प्रोसेस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो सेफ सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं है, या एट प्रेजेंट उसको उसके एलोकेटेड इंस्टेंसेस दे सकते हैं या नहीं दे सकते. तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या उस इंडेक्स की वैल्यू फॉल्स है.
और जो उसकी नीड है वो वर्क से कम है या बराबर है। देखिए अगर नीड वर्क से ज्यादा होगी तो डेफिनेटली हम नहीं दे सकते। वापस मैं बोलना चाहूंगी, वर्क क्या है? वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल। तो जो नीड है क्या वो वर्क से कम है या बराबर हो सकती है? अगर ऐसा आई एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें कहाँ जाना है? स्टेप 4 पे जाना है। और अगर ये ट्रू है तो हम क्या करेंगे? हम उसकी नीड को एलोकेट करवा देंगे और अब हमारे पास जो भी अवेलेबल था उसको एलोकेशन में हमने ऐड कर दिया। ठीक है। और जो फिनिश की एरे की इंडेक्स वैल्यू फॉल्स थी, अब उसकी नीड फुलफिल हो चुकी है, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया? ट्रू कर दिया। गो टू स्टेप 2 का मतलब क्या है? एक प्रोसेस के लिए फिर सारे प्रोसेसेस के लिए हम चेक करेंगे। कब तक चेक करते रहेंगे? जब तक कि सारी फिनिश एरे इंडेक्स आई की वैल्यू ट्रू नहीं हो जाती है। अगर सारी फिनिश एरे आई की इंडेक्स की वैल्यू अगर ट्रू हो जाती है, इसका मतलब सिस्टम के अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं वो सब सेफ सीक्वेंस का पार्ट है। और अगर नहीं होती है कोई भी इंडेक्स वैल्यू, अगर ट्रू नहीं हो पाती, वो फॉल्स ही बनी रहती है लास्ट तक, इसका मतलब क्या है कि उसकी नीड फुलफिल नहीं हो पा रही है, वो सेफ सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, वो सेफ स्टेट में प्रोसेस नहीं है, वो अनसेफ स्टेट में है। और माइट भी उसका वेट लॉन्ग वेट हो जाए और वो वेट उसको डेडलॉक स्टेट पे भी ले जा सकता है। तो बेसिकली ये हमारी क्या है? एक सेफ्टी एल्गोरिथम है। इसी एल्गोरिथम के बिहाफ पे हम आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमें क्या याद रखना है? पहले तो हमें अवेलेबल को वर्क के बराबर करना है और एक फिनिश एरे लेना है जिसकी सारी वैल्यू इंडेक्स वैल्यू फॉल्स करनी है। फिर हम जिस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए चेक कर रहे हैं उसकी चेक करनी क्या इंडेक्स वैल्यू फॉल्स है या नहीं। फॉल्स है तो हमें नीड उसकी देखनी है। अगर नीड भी फॉल्स है तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको एलोकेट करवा लेंगे जितनी भी उसकी नीड के इंस्टेंसेस हैं और उसकी फिनिश की एरे की इंडेक्स वैल्यू ट्रू कर देंगे। और कब तक हम ये करते रहेंगे? जब तक फिनिश एरे के अंदर सारी इंडेक्स की वैल्यू ट्रू ना हो जाए। पहले जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी सेफ्टी एल्गोरिथम और दूसरी हमने क्या पढ़ी है? रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है किसी का पर्टिकुलर रिसोर्स के इंस्टेंस के लिए तो तब हम ये लगाएंगे, तो इसको हम रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। अब इसके स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी प्रोसेस ने किस इंस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट करी है। तो हमने क्या कहा है कि रिक्वेस्ट वेक्टर फॉर प्रोसेस पी आई, कि जो भी उसकी रिक्वेस्ट है किस प्रोसेस ने उसकी रिक्वेस्ट करी है। अगर जो भी उस प्रोसेस की रिक्वेस्ट है वो के इंस्टेंसेस होगी तो क्या मतलब कि वो मतलब जो भी नई रिक्वेस्ट करी है वो हमारी किसके बराबर है? के बराबर। अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या जो रिक्वेस्ट करी है वो नीड से छोटी या बराबर है। देखिए अगर रिक्वेस्ट नीड से बड़ी होगी तब तो मतलब कि नीड ही नहीं है तो हम रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे क्या रिक्वेस्ट नीड से छोटी या बराबर है। अगर बराबर है तो गो टू स्टेप 2 जाना है। और अगर बराबर नहीं है या ज्यादा है तो क्या होगा? रेज एरर कंडीशन सिंस प्रोसेस हैज एक्सीडेड इट्स मैक्सिमम क्लेम, मतलब मैक्सिमम उसके जितने इंस्टेंसेस की जरूरत थी उससे ज्यादा वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो एक एरर जनरेट हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या चेक करा? रिक्वेस्ट को नीड से कंपेयर करा। फिर अब हमने देखा है क्या जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उतने अवेलेबल इंस्टेंसेस हैं या नहीं। अगर जो रिक्वेस्ट करी है उतने अवेलेबल इंस्टेंसेस हैं तब तो हम कहाँ जाएंगे? स्टेप 3 पे जाएंगे। और अगर जो रिक्वेस्ट करी है उतने अवेलेबल इंस्टेंसेस नहीं है तो उस प्रोसेस को उतनी देर के लिए वेट करना पड़ेगा बिकॉज वो इंस्टेंसेस अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। पहला क्या था? नीड से कंपेयर करेंगे। अगर नीड से कम है रिक्वेस्ट तो स्टेप 2 पे जाएंगे। फिर दूसरा क्या है? हम अवेलेबल से कंपेयर करेंगे कि जितने अवेलेबल इंस्टेंसेस हैं उतनी अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उतनी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज अवेलेबल तब तो हम स्टेप 3 पे जाएंगे। नहीं तो हम वेट करेंगे कब तक? जब तक कि उतने इंस्टेंसेस अवेलेबल ना हो जाए। अब स्टेप 3 पे क्या कहा गया? स्टेप 3 पे क्या कहा गया है कि देखो अगर आप रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहे हो तो किससे कम हो जाएंगे? अवेलेबल इंस्टेंसेस से।
अगर आप रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहे हो तो वो एलोकेशन में ऐड हो जाएंगे, और अगर आप रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहे हो तो ऑब्वियस है नीड से कुछ वैल्यू कम हो जाएगी। सही है। अगर रिक्वेस्ट फुलफिल हो रही है तो कहाँ किससे कम होंगे? अवेलेबल से। अगर रिक्वेस्ट फुलफिल हो रही है तो वो एलोकेशन में जाके ऐड हो जाएंगे, और अगर और अदर इंस्टेंसेस ऐड हो गए हैं तो डेफिनेटली वो नीड से कम हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर सेफ है तो रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू पर्टिकुलर प्रोसेस, और अगर अनसेफ है तो उस प्रोसेस को उतनी देर वेट करना पड़ेगा जब तक कि जो अदर रिसोर्सेज हैं, वो जो इंस्टेंस हमें बेसिकली चाहिए वो हमको जब तक वो रिलीज ना करके हमको एलोकेट हो जाए। तो अब हमें ये समझ में आ गया, पहले तो हम सेफ्टी एल्गोरिथम पे वर्क करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर इन फ्यूचर कोई नया प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर देता है तो क्या हम रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हैं, क्या वो हमारे मैक्सिमम क्लेम से ज्यादा तो नहीं जा रही, या उसके उतने अवेलेबल इंस्टेंसेस हैं या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आएगा ये आएगा, वी कंसिडर बेसिकली अ सिस्टम विथ 5 प्रोसेसेस। ठीक है, तो 5 प्रोसेसेस है P0 से P0, P1, P2, P3, P4, एंड वी हैव अ 3 रिसोर्स टाइप A, B एंड C, और we have for A we have 10 instances, for B, sorry, for For A, we have 10 instances, for B, we have 5 instances, and for C, we have 7 instances. किसके instances है? Resource के। अब आपको बेसिकली क्वेश्चन में कैसे मिलेगा? आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ये 2 कॉलम मिलेंगे आपको, एक तो कितने हमने उसको एलोकेट करवा दिए और मैक्सिमम उसको कितने चाहिए। तो ये तो रहे हमारे प्रोसेसेस, प्रोसेस P0, P1, P2, P3 एंड P4। ठीक है, अब इसको बोलने का तरीका क्या है कि प्रोसेस P0 के पास 0 इंस्टेंसेस ऑफ A है, 1 इंस्टेंसेस ऑफ B है और 0 इंस्टेंसेस ऑफ C है। ठीक है, और फॉर द एग्जीक्यूशन उसको 7 इंस्टेंसेस ऑफ A चाहिए, 5 इंस्टेंसेस ऑफ B चाहिए और 3 इंस्टेंसेस ऑफ C चाहिए। सही। सिमिलरली P को 3 इंस्टेंसेस मैक्सिमम चाहिए काम कंप्लीट करने के लिए, B को 2 इंस्टेंसेस और C को 2 इंस्टेंसेस चाहिए अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाने के लिए। बट एट प्रेजेंट उसको कितने मिले हुए हैं? 2 इंस्टेंसेस A के मिले हुए हैं, 0 इंस्टेंसेस B के और 0 इंस्टेंसेस C के मिले हुए हैं। सिमिलरली A में P2 को 9 इंस्टेंसेस A के, 0 इंस्टेंसेस B के और 2 इंस्टेंसेस C के चाहिए, बट प्रेजेंटली उसको कितने मिले हुए? 3, 0, 2। ठीक है, तो अब हमें टेबल पढ़नी आ गई कि टेबल को कैसे पढ़ना है। सही है, अब हमें ये देखिए, हमने क्या कहा, आपको सिर्फ 2 कॉलम्स मिलेंगे, एलोकेशन और मैक्सिमम। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबल कितने हैं। देखो हमें ये मालूम है 10 इंस्टेंसेस A के होने चाहिए, 5 B के और C के 7 होने चाहिए, और अभी तक बाट कितने दिए हैं? देखो A के कितने दे दिए हैं ऑलरेडी प्रोसेसेस को? 2 + 3 5, 5 + 2 7, मतलब 10 में से हमने 7 दे दिए, तो अवेलेबल कितने रह गए एट प्रेजेंट? 3 इंस्टेंसेस। सिमिलरली B के देखो 1 + 1 2 इंस्टेंसेस हम ऑलरेडी प्रोसेस को एलोकेट करवा चुके, कितने में से? 5 में से, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3। सही, और C में देखते हैं, C में हमने 2 दे दिया, +1 3, 3 + 2 5, 5 इंस्टेंसेस दे चुके हैं, कितने में से? 7 में से, तो 7 - 5 कितना होता है? 2 होता है। तो ये अब हमें भी पता चल गया कि जब हमारे पास मैक्सिमम और एलोकेशन होगा तो हम अवेलेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो इन वैल्यूज को ऐड करेंगे और एलोकेशन में जो टोटल है उसमें से माइनस कर देंगे। सही, आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास 3 कॉलम्स, तो हमने एलोकेशन और मैक्सिमम से हमने क्या कर दिया? अवेलेबल निकाल दिया। अब हमें चाहिए उसका नीड निकालना। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? नीड निकालना। ठीक है, नीड निकालने का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, मतलब मैक्सिमम जितने चाहिए उसमें से माइनस क्या करना है? एलोकेशन करना है। ठीक,
करते हैं इसको सही। यहां तक हमने निकाल दिया एलोकेशन, मैक्सिमम एंड अवेलेबल। अब हमें क्या निकालना है, अब हमको चाहिए नीड निकालना है। इसी में एक कॉलम और ऐड कर देते हैं नीड का, सही। नीड निकालने का तरीका क्या था, नीड निकालने का तरीका था मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। देखो मैक्सिमम कितना है 7, सॉरी मैक्सिमम कितना है 7 और तो 7 माइनस 0 इज 7, ठीक है। 5 माइनस 1 इज 4 एंड 3 माइनस 0 इज 3। तो प्रोसेस P0 को 7 इंस्टेंसेस ऑफ A, 4 इंस्टेंसेस ऑफ B एंड 3 इंस्टेंसेस ऑफ C चाहिए। सिमिलरली P1 की निकाल लेते हैं। 3 माइनस 2 इज 1, 2 minus 0 is 2 and 2 minus 0 is 2. 9 minus 3 6, 0 minus 0 0 और 2 minus 0 0, 2 minus 2 0, 2 minus 1 1 और 2 minus 1 1, 4 minus 0 4, 3 minus 0 3 और 3 minus 2 1। मतलब हमने हर एक प्रोसेस की उसकी इंडिविजुअल नीड निकाल ली, ठीक है। तो सबसे पहले तो एलोकेशन और मैक्स से हमने अवेलेबल निकाला, फिर अब हमने क्या निकाला नीड। नाउ वी विल चेक कि इस सिस्टम के अंदर जो ये 5 प्रोसेसेस चल रहे हैं, ये 5 प्रोसेसेस सेव सीक्वेंस का पार्ट बनते हैं या नहीं बनते। तो आप सेव सीक्वेंस के लिए हम कौन सी एल्गोरिथम लगाएंगे, सेफ्टी एल्गोरिथम लगाएंगे। अगर हम सेफ्टी एल्गोरिथम लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है, अब साथ में अपने साथ एल्गोरिथम भी रखो। सेफ्टी एल्गोरिथम लगा रहे तो इसका मतलब क्या है कि हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि वर्क इक्वल टू हमें क्या करना है, अवेलेबल करना है, ठीक है। तो हमारा वर्क इक्वल टू तो क्या हो जाएगा अवेलेबल, तो वर्क इक्वल टू अवेलेबल कर दिया। अरे वर्क इक्वल टू अवेलेबल, ठीक। तो ये कितना है मेरा 332। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, फॉर प्रोसेस P0। तो ऐसे लिखोगे फॉर क्या है, फॉर प्रोसेस P0, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा P0 के लिए, और हमने आपको पहले भी बोला था आपको एक फिनिश एरे वेक्टर बनाना पड़ेगा। अब कितने प्रोसेस हैं, कितने प्रोसेसेस हैं, 5 है। तो इंडेक्स वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, फॉल्स 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 फॉल्स
ऑफ फॉल्स। ठीक है, तो पांचों वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो हमारा पहला स्टेप क्या था कि वर्क इक्वल टू अवेलेबल हमने कर दिया। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप आपके एल्गोरिथम में ये लिखा था कि जो फिनिश एरे आई की वैल्यू है, सबसे पहले क्या चेक करनी पड़ेगी कि वो फॉल्स है या नहीं है। तो हमें क्या दिख रहा है, हम प्रोसेस P0 के लिए दिख रहे हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि फिनिश जीरो की वैल्यू क्या है, इक्वल टू फॉल्स है। ये तो पता चल रहा है हमको। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या था कि हमें ये चेक करना था क्या नीड जीरो इज लेस देन इक्वल टू वर्क। ठीक है, अगर नीड की वैल्यू जो है वो वर्क से कम है या नहीं, तो देखो प्रोसेस P0 की नीड की वैल्यू क्या है, 743, और वर्क की वैल्यू क्या है, 332। ठीक है, अगर ये है तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या हम अभी नीड फुलफिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसका मतलब हम कहाँ जाएंगे, वापस से नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस का जाने का मतलब है, अब हम किसके लिए चेक करेंगे, फॉर प्रोसेस P1। ठीक है, फॉर प्रोसेस P1 चेक करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि फिनिश एरे, अरे की वैल्यू क्या फॉल्स है, तो हाँ फॉल्स है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे ऑलरेडी हमने अभी क्या कर रखा है, फॉल्स कर रखा है। और हमें ये चेक करना है क्या नीड लेस देन इक्वल टू वर्क है। ठीक है, अब नीड वन क्या है, 1 2 2। ठीक है, और वर्क क्या है, 3 3 2। यही वर्क है। तो क्या ये हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल हो सकती है, एकदम फुलफिल हो सकती है। अगर फुलफिल हो सकती है तो क्या कंसेप्ट था, कंसेप्ट ये था कि हमें क्या करना है, वर्क इक्वल टू, सॉरी, हमें क्या करना है, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन आई करना है। ठीक है, एलोकेशन आई करना। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 1। तो हमारा यहाँ पे हम किसके लिए बात कर रहे हैं, एलोकेशन 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 की बात करें। वर्क कितना है मेरा, 3 3 2। ठीक है, और प्रोसेस P1 को कितने एलोकेटेड है, देखो कितने एलोकेटेड है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 200। तो 200 मीन्स 200। तो ये रहा 200। तो ये कितना हो गया, अब हमारा वर्क कितना हो गया, 532। ठीक है, अगर 532 हो गया, एक तो हमने नया वर्क कर लिया, क्यों, क्योंकि हमने प्रोसेस P1 को रिक्वेस्ट को फुलफिल कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है इसी के अंदर कि जो आपके उस इंडेक्स की वैल्यू है उसको हमें क्या करना है, ट्रू करना है। तो अब हमने उसको ट्रू कर दिया, मतलब एक प्रोसेस है जो सेव सीक्वेंस का पार्ट बन गया। तो हम साथ ही साथ यहाँ पे सेव सीक्वेंस भी लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब प्रोसेस P1 पे तो हमें पता चल गया कि
उसकी नीड फुलफिल हो सकती है। और अब हमें नया वर्क मिल गया है, और नया वर्क क्या मिला है हमें, 532। तो अब हमारा वर्क क्या हो गया, 532। ठीक है। अब फॉर प्रोसेस P2, सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या फिनिश एरे इंडेक्स 2 की वैल्यू फॉल्स है, ट्रू है। क्या नीड जो है हमारा वो वर्क से छोटा या बराबर है। तो देखो नीड कितना है मेरा, 600। तो क्या हम अभी इसकी नीड फुलफिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारी नीड अभी प्रेजेंट अवेलेबल से ज़्यादा है। तो अब हम किस में जाएंगे, फॉर प्रोसेस P3। ठीक है, तो यहीं पे चेक कर लेते हैं फॉर प्रोसेस P3। ठीक है, प्रोसेस P3 में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्या फिनिश इंडेक्स एरे 3 की वैल्यू क्या कहते हैं वो है फॉल्स है, एकदम फॉल्स है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि जो नीड 3 है वो वर्क से छोटी या बराबर होनी चाहिए। अब नीड 3 कितनी है, 011 प्लस, सॉरी 011 है, और एट प्रेजेंट अवेलेबल कितने हैं मेरे पास, वर्क क्या है मेरा 532। ठीक है, अगर 532 है इसका मतलब क्या है, हम नीड फुलफिल कर सकते हैं। तो एकदम नीड फुलफिल कर लेते हैं। नीड में क्या होता है, अगर ये वाली चीज़ फुलफिल हो रही होती है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है कि जो भी वर्क है उसके अंदर आपके एलोकेशन को ऐड करना है। अब हम किस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोसेस P3 के बारे में बात कर रहे हैं। और प्रोसेस P3 का एलोकेशन कितना है, 211। तो हम 211 इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 743। ठीक है, तो अब हमें नया वर्क, और साथ के साथ हमें क्या करना है, साथ के साथ हमें प्रोसेस P3 के इंडेक्स की वैल्यू ट्रू करनी है। ठीक है, तो इसकी इंडेक्स की वैल्यू हमने क्या कर दी, ट्रू कर दी। और साथ के साथ हमें अपने सेव सीक्वेंस में एक और प्रोसेस मिल गया, दैट इज P3। देखो ये प्रोसेस P0 का, ये प्रोसेस P1 का, ये प्रोसेस P2 का, और ये प्रोसेस P3 का। अब हम किस पे जाएंगे, फॉर प्रोसेस P4। ठीक है, P4 के लिए जाएंगे तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या इंडेक्स वैल्यू क्या कहते हैं फॉल्स है या नहीं है, फॉल्स है। फिर हम क्या चेक करेंगे, नीड चेक करेंगे। नीड चेक करेंगे तो नीड से हम क्या चेक करेंगे, वर्क चेक करेंगे। अभी हमारा वर्क कितना है, अभी अभी हमको वर्क मिला है, ये देखो हमको वर्क क्या मिला है प्रोसेस उससे 743। तो यहाँ पे अब हम क्या वर्क लिख देंगे, 743 लिख देंगे। ठीक है, अब हम हमारी नीड क्या है, प्रोसेस P4 की नीड क्या है, 431। तो नीड ऑफ 4 इज लेस देन इक्वल टू वर्क होना चाहिए। तो नीड क्या है, 431। और वो किससे है, 743 से कम है। तो ये नीड फुलफिल हो सकती है। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, वर्क के अंदर उसके एलोकेशन को ऐड कर दो। वो कितनी हो गई, 002। तो दैट विल बी 745।
तो अब हमें नया वर्क मिल गया, दैट इज 7 4 5। और हमें एक काम क्या करना है, इंडेक्स 4 पे उसकी वैल्यू को क्या कर देना है, ट्रू कर देना। तो हमने इसको ट्रू भी कर दिया ट्रू। अब हमारे पास एज वेल एज हमें एक काम और करना है, अपने सेव सीक्वेंस में इसको ऐड करना है। तो इसको ऐड भी कर दिया। तो अब अभी हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं जो सेव सीक्वेंस का पार्ट बन चुके हैं, P1, P3 एंड P4 बन गए। अब हमारे पास बचते हैं 2 प्रोसेस। अगर उन 2 प्रोसेसेस की बात करें तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है कि किसको हम, एक तो हम चाहे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कर लें। तो बचे हुए 2 प्रोसेस कौन से हैं, P0 एंड P2। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम उसके नीड के अकॉर्डिंग उन प्रोसेस को एलोकेशन करवाएं, या हम क्या करें कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में पहले आया है उसको हम दे दें। तो देखिए, अगर नीड देखें तो प्रोसेस P0 की नीड क्या है, 743, और P2 की क्या है, क्या कहते हैं, 600। ठीक है, तो अगर हम नीड से देख, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से देखेंगे तो हमें किससे मिलेगा, हम सबसे पहले किसको देंगे, P0 को, और फिर हम किसको देंगे, P2 को। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से ही काम करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको देना चाहेंगे, P0 को देना चाहेंगे। देखो, नीड अब दोनों की फुलफिल हो पा रही है, इसका मतलब अब क्या चेंज होगा, सिर्फ वर्क ही चेंज होगा। तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं, ये अब नीड हमारी प्रोसेस P0 की फुलफिल हो सकती है। तो अब वर्क क्या है मेरा, 745। ठीक है, एज वेल एज एलोकेशन कहाँ से देखेंगे हम, एज वेल एज हम एलोकेशन कहाँ से देखेंगे, ये देखो कितने हैं, 0 1 0। तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, 0 1 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना वर्क हो गया, 7 5 5। कितना हो गया, 7 5 5। ठीक है, एज वेल एज हम क्या करेंगे, इसकी इंडेक्स की वैल्यू को ट्रू कर देंगे। तो इसकी इंडेक्स की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ठीक है, और एक काम क्या करेंगे, हम इसको सेव सीक्वेंस में ऐड कर देंगे। तो इसको यहाँ पे हमने सेव सीक्वेंस के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमारा वर्क क्या हो गया, 755। तो यहाँ पे हमने 755 कर दिया। और लास्ट कौन सा प्रोसेस बचता है, P2। P2 की नीड क्या है, 600, डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है। तो वो भी, उसकी भी नीड फुलफिल कर दी गई, और उसको अब सेव सीक्वेंस का पार्ट बना दिया गया। तो P2 भी सेव सीक्वेंस का पार्ट बन गया। एज वेल एज हम उसके इंडेक्स को भी क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो मतलब इस एग्जाम्पल से हमको क्या पता चलता है कि जिस हिसाब से हमने मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए करा है, और जिस हिसाब से हमने मैक्सिमम और है ना क्या कहते हैं एलोकेशन करा था, देन अप्लाइंग बैंकर्स एल्गोरिथम, हमको ये पता चल गया, हमने उसकी अवेलेबल कैलकुलेट करें, फिर नीड एंड क्या कहते हैं कैलकुलेट करिए, फिर सेफ्टी एल्गोरिथम के हमने सारे स्टेप्स इसमें ऐड कर दिए, एग्जीक्यूट करें, और हमको एक सेफ सीक्वेंस जनरेट हो गया। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और अपडेट कर सकते हैं, और वो अपडेशन किसके लिए कर रहे हैं हम, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम के लिए।
ठीक है। तो रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम में हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर अगर हम इसी क्वेश्चन के अंदर हमारा एक सी पार्ट हो जाएगा कि एट पर्टिकुलर टाइम इस पर्टिकुलर प्रोसेस ने ये इंस्टेंसेस की रिक्वेस्ट करी, तो क्या रिक्वेस्ट फुलफिल होएगी और क्या फिर हमारा सिस्टम सेफ सीक्वेंस में रहेगा या नहीं रहेगा। सपोज नाउ दैट प्रोसेस P1, किसकी बात कर रहे हैं अब हम, प्रोसेस P1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस P1 request one additional instance of resource type A and 2 instances of resource type C, ठीक है। प्रोसेस P1 ने क्या रिक्वेस्ट करी है, प्रोसेस P1 ने रिक्वेस्ट करी है जो रिक्वेस्ट करी वो करी थी ए के एक इंस्टेंसेस चाहिए और सी के 2 इंस्टेंसेस चाहिए, ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है टू डिसाइड वेदर दिस रिक्वेस्ट कैन इमीडिएटली बी ग्रांटेड। वी फर्स्ट चेक, अब वापस कहाँ पे आएंगे, हम एल्गोरिथम के अंदर आएंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या जो रिक्वेस्ट करी है उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल है या नहीं है। अब देखियो अवेलेबल अभी भी कौन से हम देख रहे हैं, यही वाले अवेलेबल देखेंगे। तो हम क्या चेक करेंगे, जो रिक्वेस्ट है क्या वो अवेलेबल से कम है या नहीं। अगर अवेलेबल से कम है तब तो हम रिक्वेस्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है क्या रिक्वेस्ट नीड से कम है या नहीं है। तो देखो रिक्वेस्ट जो है वो नीड से कम है, रिक्वेस्ट क्या है 102, नीड क्या है 122। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या जो रिक्वेस्ट है वो अवेलेबल से कम है या नहीं। तो डेफिनेटली जो रिक्वेस्ट है वो अवेलेबल से कम है। अगर अवेलेबल से कम है तो अब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट में अवेलेबल में से रिक्वेस्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब क्योंकि हम रिक्वेस्ट फुलफिल कर पा रहे हैं तो पहला स्टेप क्या था, रिक्वेस्ट में से अवेलेबल माइनस करना है। तो हमने क्या करेंगे, ये अब हमारे पास अवेलेबल कितने रह जाएंगे, अवेलेबल में से ये हो गया 2 3 0, इतने ही अवेलेबल रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहे हैं। एज वेल एज अब हम क्या कर रहे हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोसेस P1 की ही बात कर रहे हैं, याद रखना। एज वेल एज हम क्या करेंगे, जो हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल हो रही है तो उसको एलोकेशन में ऐड कर देंगे। तो पहले तो हमें कितने एलोकेटेड थे 200, बट अब रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई तो अब कितने हो गए 302, ठीक है। और हमारी नीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी अकॉर्डिंग टू द नीड हमारी कुछ और रिक्वेस्ट भी फुलफिल हो गई। तो वो कितनी हो जाएगी 020, ठीक है। तो चेंजेस दिख गए। सबसे पहले हमने क्या करा, रिक्वेस्ट को हमने ये चेक करा नीड से कम है या नहीं है। अगर नीड से ज्यादा होती रिक्वेस्ट तो क्या हो जाता है, एरर हो जाता। फिर हमारा स्टेप 1 ट्रू हो गया। स्टेप 2 क्या था, हमने क्या चेक करा कि रिक्वेस्ट से अवेलेबल कम है या नहीं है। अगर अवेलेबल इंस्टेंसेस है तभी रिक्वेस्ट फुलफिल हो सकती है, तो अवेलेबल के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट फुलफिल हो पा रही थी। फिर हमने हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, एलोकेशन में ऐड कर देंगे। और अगर हमें अब हमारे मैक्सिमम के अकॉर्डिंग एलोकेशन हमारे ज़्यादा हो गए तो हमारी नीड भी कम हो जाएगी। तो वापस से अब हमको एक नई टेबल मिलती है। अब हमें ये देखना है कि जो हमारी रिक्वेस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग अब हमारा सिस्टम क्या सेफ सीक्वेंस में है या नहीं है। तो वापस से अब हम क्या लगाएंगे, अपनी सेफ्टी एल्गोरिथम लगाएंगे, ठीक है। आप ये सोचिए, आपको ये मान के चलिए क्वेश्चन 3 पार्ट्स में आएगा। पहला पार्ट तो क्या होगा, पहला पार्ट में आपको कहा जाएगा नीड कैलकुलेट करिए। दूसरे पार्ट में ये होगा कि क्या सिस्टम सेफ सीक्वेंस में है या नहीं, तो इसी टेबल से आप सेफ्टी एल्गोरिथम लगा लेंगे। और तीसरे पार्ट में क्या कहा जाएगा कि जो पहले टेबल मिली थी उसमें आप ये देखिए कि अगर एट टाइम T1 कोई प्रोसेस किसी पर्टिकुलर उसके लिए रिक्वेस्ट करता है तो क्या वो रिक्वेस्ट फुलफिल होने के बाद भी हमारा सिस्टम सेफ सीक्वेंस पे रहता है या नहीं रहता है। तो पहले तो हम रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट देखेंगे
फिर हम वापस से सेफ्टी एल्गोरिथम लगा के सेफ सीक्वेंस जनरेट करवाएंगे। तो ये थी हमारी बैंकर्स एल्गोरिथम। थैंक यू सो मच।